Let me ask question. You can answer without looking. Huh? Okay. बिना देखे आंसर करिए मैडम. DHCP. What is DHCP? Full form of DHCP? Sir, me. Yes. Minal. Okay. Sir, DHCP is Dynamic Host Configuration Protocol, and it is used for assigning IP addresses automatically. Hmm. Okay. Dynamic host configuration protocol is used for assigning IP address automatically. Okay. What is DNS? Rian? This domain name system. It translates domain to IP addresses to particular and vice versa. Huh? And vice versa. Pixel. It translates and resolves. Resolve. हाँ. The DNS का full name. form क्या है? Domain name. इतना फास्ट बोलते हैं ऐसा take benefit of doubt. हाँ. It resolve or translate. समझ में नहीं आता है आपने सही बोला नहीं वो इतना फास्ट बोलेगा. ऐसा बोलते तो क्या करेंगे? क्या समझ में आएगा? हाँ बोलो क्या करता है DNS? It translates domain name system of IP addresses and vice versa. Names to IP address and vice versa. Domain names to IP address and vice versa. Yes. Right? Then okay, name resolution. It's used for name resolution. All right. ठीक है ना मिनल? Yes, sir. But sir, your sound is now coming from very far, and there is a noise in the background, as if something has been switched on, like अभी some machine. अभी आ रहा है क्या? एक Sir, मिनट. फिर से बोलिए ना. Just a second. अभी भी दूर से आवाज आ रहा है? अभी ठीक है सर, पर पीछे ना कोई मशीन चालू हुई है आपके. उसका नॉइज आ रहा था अभी थोड़ी देर पहले, ऐसे कुछ प्रिंटर या कुछ तो भी स्टार्ट हुआ था. एक मिनट. अभी कैसे आ रहा है आवाज? हाँ, दिस इज वेरी क्लियर सर. दिस इज गुड. क्लियर बट इसमें खाली एक मिनट. कस्टमाइज सेटअप माइक्रोफोन. हाँ अभी ठीक आ रहा है? यस क्लियर? यस सर. पक्का क्लियर? यस यस सर, क्लियर. ओके. Okay, next question to Minal. What is NAT? Full form of NAT? Sir, NAT is Network Address Translation. Oh. Okay, and Rian, can you tell me in one line what NAT does? In one line, can you explain what NAT does? So it is an IP address shared with a private network. IP address? Shared with a private network. IP address shared with the IP address is shared with a private network. private network. हाँ भेज दो थोड़ी देर क्लास में. आजकल लोग डायरेक्टली फोन कर लेते हैं ना, धाड़ धाड़. ओके. ये मोबाइल इन्वेट करके बहुत मुसीबत हो गई है ना. क्यों क्यों मिनल? सर इसके दोनों ही है, प्लस माइनस दोनों पॉइंट्स है इसके. कॉल फ्री करके तो बहुत हो गया. हाँ कॉल फ्री करके. हाँ करे फ्री कर. फ्री कॉल फ्री समथिंग. ओके. Yeah, so what is the job of NAT? Tell me, Rian. What exactly NAT does? Sir, it assigns public IP addresses to private networks. No.
आवाज आ रही क्या बराबर मीनल? यस सर, अभी आ रही है अच्छी। हाँ आप बताइए नेट क्या करता है मीनल, बताइए तो। मीनल यस सर। बताइए। सर, NAT is basically a Wi-Fi router. वाईफाई राउटर? Yeah, and it translates the IP address. I mean, it shares it with a private network, from a public IP to a private network. Like हमारा वाईफाई राउटर जैसे इंटरनेट का आईपी हमारे कंप्यूटर में शेयर करता है। हम्म Enables private IP networks to use the internet and cloud. Private networks को प्राइवेट, networks to internet. you know that we always use the private computer, private IP address, right? So what is the private range for class A? Tell me, Rian. 10 के बाद है सर। 10. 10 point क्लास start बी के लिए, start हाँ क्लास बी के लिए क्या प्राइवेट है? 172.16 point start to 172.31 point start. Yes, मीनल क्लास सी के लिए what is the private range? यस सर। क्लास सी के लिए क्या प्राइवेट रेंज है? क्लास सी के लिए सर सी के लिए है वन मिनट सर। सो आई एम थिंकिंग सर, अभी बताया था आपने। वन ए बी सी 192 टू 192 to 223 सर, क्लास सी के लिए। 192. सॉरी, That is प्राइवेट रेंज आप पूछो। private range है ना? 192.168 सर, 192.168 सर, प्राइवेट रेंज। Right. यस सर। Just a second. Yes. तो नेट करता क्या है? सी वी यूज ऑलवेज प्राइवेट नेटवर्क सर। हम हमेशा प्राइवेट नेटवर्क यूज करते हैं, राइट? यस तो सर। उससे इंटरनेट कनेक्ट नहीं होगा। So राइट। what net does is it will convert our private IP to public IP. Only one IP you take, one public IP से convert करेगा वो। तो when you are accessing something outside, what it will do? It will use that public IP. जब आप आउटसाइड का नेटवर्क एक्सेस करेंगे तो पब्लिक आईपी यूज करेगा। सो अपना जो प्राइवेट आईपी इट विल ट्रांसलेट टू पब्लिक आईपी। सो वन सिंगल पब्लिक आईपी इज यूज्ड बाय ऑल। ओके सर, वन सिंगल पब्लिक आईपी इज यूज्ड बाय ऑल। यस। ओके। तो इसीलिए तो अभी देखो ना आपके घर पे कितने डिवाइसेस यूज हो रहे हैं, वाईफाई डिवाइसेस सर घर मैनी, पे? मैनी घर ना, पे मैनी मोबाइल फोन्स, लैपटॉप, वाईफाई राउटर टीवी। एक है लेकिन कितने? हाँ 6-7 डिवाइसेस है ना। हाँ तो सर। सबके आईपी एड्रेस देखो आप अलग अलग रहेंगे, लेकिन इफ यू वांट टू चेक व्हाट पब्लिक आईपी इट इज यूजिंग, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? आई टॉट यू वन कमांड। यस नो सर। यस सर। आईपी कॉन्फिग ऑल। नो, नो नो नो। कौन सा पब्लिक आईपी यूज आप कर रहे हो कैसे पता चलेगा? क्या होगा तुम्हारा, क्या इस देश का होगा?
सर गूगल में टाइप व्हाट इज माय आईपी एड्रेस इन गूगल। हाँ, गूगल में व्हाट इज माय आईपी देंगे तो पता चलेगा। हाँ राइट। गुड, मैं रिवीजन ले रहा हूँ, नहीं तो क्या आपकी तो भैंस पानी में गई थी। नहीं सर गुड, आप ऐसे ही हम लोग को ये करते रहिए सर। वही ना। हम्म। ओके। हम्म। हम्म। समझ में आया ना? दिख रहा है व्हाट इज माय आईपी कर किया आपने? यस सर। करके देखो एक बार जरा। सर आ गया, आई कैन सी इट। सर हाँ बोलो, क्या बोल रहे सर मीनल? मेरा क्वेश्चन था यहाँ पे, जैसे आपने हमको प्राइवेट आईपी रेंज तो बताया, कंप्लीट आईपी रेंज भी क्लास ए बी सी का बताया, डी का भी बताया, बट पब्लिक आईपी रेंज डिफरेंट होता है ना? अरे वो छोड़ के जितने भी सब पब्लिक आईपी है ना। उनको छोड़ के। हाँ, वट एवर बिसाइड्स दैट इज ऑल पब्लिक आईपी। प्राइवेट रेंज के अलावा सब हाँ, प्राइवेट रेंज के अलावा जितने भी वो सब पब्लिक आईपी हो गए। ओके सर। समझा? यस सर। तो in short what net does is net is allowing us to access internet using private IP, कि आपके नेटवर्क में प्राइवेट आईपी यूज कर रहे हैं ऑफिस में, घर में, but it allows you to access internet. Why? Because one public IP is shared by your ISP. आपके एरिया में द
ISP has set up some router, उसमें उसने एक public IP set किया, उसमें NAT protocol use किया है. So all people in your area they are using same public IP. आपके neighbor भी अगर same internet use कर रहा है, तो उसका भी what is my IP देखेंगे तो वही आएगा. Okay, so we have public IP पहले बहुत abundance में था क्योंकि internet users बहुत कम थे, right? Yes, sir. But बाद में क्या हुआ कि बहुत यूजर बढ़ गए सर. यूजर्स बढ़ गए तो फिर इसलिए पब्लिक आईपी सबको नहीं दे सकते अभी. Only the organizations they can get public IP on request. That too we have to pay money for that. We have to purchase it. Clear now? Yes, sir. Right? Yes, sir. समझ में आ गया? Yes, sir. Then okay, so what are the popular cloud available today? Rian, you tell me. What are the different types of cloud available? Popular cloud. Sir, I or Rian. Azure, AWS, Google Cloud. So these three are very popular services as on today. Azure, AWS and Google. Okay. Meenal? yes, sir. All right. What do you mean by gateway, Meenal? Yes, sir. What is Gateway. gateway? Sir, it is the IP address of the router. Gateway is the IP address of your router, which is Correct. connected to our network. Right. Gateway is the IP address of the router which is connected to the network. Okay. Right. Okay. तो हमेशा वही होता है कि गेटवे इज आईपी एड्रेस ऑफ द राउटर. ओके. Yes, sir. Then what is the job of router, Rian? It is a device used to connect 2 or 3 networks. Different networks, yeah. Okay, next is what do you mean by public and private network, Meenal? Sir, public network is the internet. Okay, and private network is the network that we use at home or in private offices. Right, very good. God bless you, madam. Thank you, sir. You too. Okay, then next is okay, Rian, what are the types of services on cloud? Types of
infrastructure as service and platform as service and last वाला जिसमें ओवरऑल कंबाइंड पैकेज होता है ना रेडी मिलता है लास्ट वाला क्या है मीनल बोलो सर SaaS SaaS मीनल को पता है SaaS या SaaS तो पता है ना तो इसलिए SaaS वो भूली नहीं है ना हाँ सर वो अभी किया था ना उस पे काम तो थोड़ा याद है हाँ SaaS और SaaS भी कभी भौती वाला SaaS SaaS का फुल फॉर्म क्या है Sir, software as service. There are different services on cloud. SaaS is software on service. Software as a service. As a service, sorry, not Infrastructure yeah, as a service, platform as a service, software as a service. तो हमारे पास ऐसे 3 टाइप के सर्विसेज है, right? But can you explain what is एक एक करके रियाना बताइए IaaS infrastructure service actually क्या होता है? उसमें हमें मतलब सिर्फ एक ऐसा बेस दिया जाता है प्लेग्राउंड टाइप जैसा आपने एग्जांपल दिए थे एक ओपन प्लेग्राउंड दिया जाता है बाकी का हमें साथ में जो नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन है और साथ में जो टीम हायर करनी है पूरा वो सिस्टम को वर्क करने के लिए वो पूरा मैनुअली हमें करनी पड़ती है करेक्ट खाली बेयर मेटल मशीन्स मिलेगी प्लेग्राउंड मिलेगा राइट हाँ पैस का बताएंगे मैडम मिनल मैडम platform as a service that means that you will get the platform where you will be able to set up an infrastructure as well as you get the base, the place where you are setting up the infrastructure. So it gives more service than just IaaS, than what is given in IaaS. तो एग्जाम्पल से तो सर जैसा आपने लास्ट टाइम क्रिकेट का ग्राउंड का एग्जाम्पल लिया था तो उसमें यू सेड कि पहले सिर्फ पिच मिलेगी मतलब सिर्फ ग्राउंड मिलेगा बट इसमें हमें ग्राउंड तो मिलेगा ही तैयार प्लस एक स्टेडियम भी मिलता है मतलब लिटिल मोर सर्विसेज देन IaaS हाँ इसमें कैसा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम सेटअप होता है उसको पैचिंग करने की जरूरत नहीं है ना एनवायरनमेंट सेटअप करके मिल जाएगा आपको एनवायरनमेंट सेटअप सर यस नॉर्मली क्या होता है अगर लैपटॉप लिया तो उसमें ओएस इंस्टॉल करो यू इंस्टॉल ओएस देन यू इंस्टॉल द पैचेस अगर नए कुछ पैच है तो अपडेट करने पड़ेंगे या एसक्यूएल सर्वर है तो उसके भी पैचेस लगते हैं तो ये सारा जो सर्वर मैनेजमेंट जो है वो क्लाउड प्रोवाइडर करेगा आपको खाली वहां पर जाके प्लेटफॉर्म मिल गया आप जाके खाली शेयर करो या रेलगाड़ी में बैठ जाओ बस प्लेटफॉर्म बना हुआ है आपके लिए जैसे सर मेरा एक एक्सपीरियंस है मैंने Amazon से एक लैपटॉप लिया था तो वो बिल्कुल ब्लैंक आया था मतलब उसमें कुछ भी नहीं था ऑन करो तो ऐसा डॉस के स्क्रीन जैसा ब्लिंक करता रहता था सिर्फ साइड में फिर उसमें विंडोज भी मुझे डालना पड़ा फिर उसमें सारा सिक्योरिटीज में मुझे डालना पड़ा फिर उसमें माइक्रोसॉफ्ट के सारे कुछ मुझे डलवाने पड़े तो हाँ तो उससे मुझे पता चला कि मतलब Amazon से नहीं लेना वापस से मुझे अरे कहीं और से ले लूंगी जो सब डाल के देगा तो आपने जो ऑर्डर किया वो आएगा ना अगर उसको बोलेंगे ओएस के साथ चाहिए तो वो देगा ना ऐसे Amazon से दुश्मनी ऐसा मत करो कल को पता चले आपको Amazon में काम करना है तो क्या करेंगे तो ये एक्सपीरियंस नहीं बताऊंगी आप बोलेंगे कि मेरे को कंप्यूटर गोरा चाहिए था काला दे दिया ऐसे बोलेंगे हाँ ना वाइट बोल के कैसा तो भी दे दिया सही है यार आप नीचे मिले ऊपर मत मिलना ऐसा आता है लेकिन लैपटॉप ऐसा आता है हाँ भैया रहता है ना विदाउट ओएस का एक्स्ट्रा चार्ज एक्स्ट्रा रहता है ना तो वो लैपटॉप के चार्ज में नहीं रहता है हाँ लैपटॉप के चार्ज में इंक्लूड नहीं रहता है यू हैव टू ऑर्डर दैट वे आप ओएस के साथ ऑर्डर कर सकते हो विदाउट ओएस सस्ता ही मिलेगा ना हाँ आप सस्ता खरीदे तो होंगे ना अच्छा प्राइस देखा होगा आपने क्या है ओएस 6 का होगा ना सब हाँ ओएस भी 7-8 हजार का ओएस रहता है ओके हाँ तो मैंने सोच लिया सब ऑर्डर करूंगी लैपटॉप नहीं करूंगी लैपटॉप जाके मैं उधर क्रोमवॉम से ले लूंगी कहीं से लैपटॉप का ऑर्डर मुझे दे देना मैं आपको कुरियर कर दूंगा मेरे पास सब अच्छा है प्राइस में मिलेगा आपको ठीक है सर
नए लैपटॉप भी रहते हैं। Okay, so infrastructure as service, platform as a service, and then we have SaaS, which is software as a service. सर एक बार ना, अभी आप ये जो तीनों का आपने बोला ना, क्या क्या मिलेगा, लाइक इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल टर्म्स में आपने जो जो बोला ना, वो आई वांट टू राइट डाउन। ठीक है, तो अभी मैं एक बार मुझे फिर से आप जैसे बताइए ना प्लीज, 1 मिनट। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में सिर्फ आपको ये मिलेगा, यस। बेयर मेटल मशीन्स। मतलब और इसका प्लेग्राउंड एक एग्जांपल सर, कोई कंपनी का नाम लेके आप बताइए ना प्लीज, जैसे कौन सी से कंपनी आपको सिर्फ जो ये लैपटॉप देती है। मिला था वो इंफ्रास्ट्रक्चर हाँ सर्विस से मिला आपको। हाँ, ब्लैंक ही था वो, मतलब बिल्कुल हाँ, मतलब सर बस लैपटॉप मशीन मिली। हाँ विंडोज और लैपटॉप पे विंडोज और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस तीनों ऐसे बराबर है। किस पे? मतलब ये तीनों का हमने अगर एग्जांपल लैपटॉप के केस में लिया, हाँ तो प्लेग्राउंड में मतलब बेयर लैपटॉप, हाँ फिर प्लेटफॉर्म एज सर्विस में लैपटॉप और जो ओएस है वो प्लेटफॉर्म एज सर्विस है, एंड एसएएस में प्लेटफॉर्म लैपटॉप और वो जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एप्लीकेशन है। बराबर है सर ये? वो ऑफिस भी अलग से खरीदना पड़ता है ना सर, वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का वो विंडोज में नहीं आता है ना, वो ओएस में ऑफिस में आता है ना, हाँ, तो अलग से खरीदना अलग से पड़ता खरीदना पड़ता है। है। प्लेटफॉर्म एज सर्विस मतलब जिससे ऑपरेटिंग सिस्टम आपको विंडोज इंस्टॉल हाँ, करके हाँ। मिलेगा उसका, लेकिन मेंटेनेंस होता है ना, यू हैव मेंटेनेंस ऑफ विंडोज, दैट मींस यू हैव टू डू पैचिंग। हाँ, बट इफ यू टेक प्लेटफॉर्म एज सर्विस, दैट पैचिंग इज डन ऑटोमेटिकली। या सीक्वल सर्वर का भी पैचिंग होगा, कुछ अपग्रेड्स आएंगे तो सारा चीज वो वही करेगा। या फिर आपने कोई मोबाइल स्टेशन लिया, मोबाइल डेवलपर है तो उसके लिए मोबाइल का कोई चाहिए, आपको प्लेटफॉर्म चाहिए। जैसे एंड्रॉइड डेवलपर है तो उसको उसका प्लेटफॉर्म चाहिए, तो वी कैन टेक प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, सो यू डोंट वेस्ट टाइम डूइंग ऑल दैट थिंग, राइट? You can directly do your development work. So in platform as service, sir, we get Windows installed in the laptop, for example. Installed on the server, as well as uske updates also cloud will manage. You don't have to update the Windows. Mhm. Everything is managed by the cloud only, cloud provider. या Okay. SQL होगा, SQL रहेगा तो उसका भी सब मेंटेनेंस, एवरीथिंग क्लाउड इज गोइंग टू डू। Getting me? Yes, sir. So nothing doing, no need to do anything. Then software as a service में the end product is there. जैसे my Office 365 is an example of software as a service. उसमें you are just directly using the product. You don't have to do anything. कोई server setup नहीं, everything ready to use. जैसे आप Sir, होटल में जाते हो, one when you go to question, like, hotel, okay. wait, let me take you to Sorry, hotel. sorry. Yes, sorry. When you go to hotel, everything is ready to use, right? उसमें कुछ करना नहीं, सब खाना पीना सब रहना सब कुछ रेडी रहता है ना, वैसे ही सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है, ठीक है ना? खाली आपको रेंट पे करना पड़ता है होटल का, वैसे इसका भी वही है, वैसे ही है। You have to pay subscription fee, that's all. Everything is set up for you, you have to do, सारी चीज चलेगा। Getting, madam? Yes, sir. So, sir, one question. हाँ In IaaS, infrastructure as service, we get bare metal machines. In PaaS, platform as a service, we get Windows, we get Windows updates. Everything is done by the cloud service provider. Okay. Plus, the bare metal machines are also given. Is it the of course, combination? Okay. combination वो तो हाँ, मिला, बट उसके बाद में ये भी आपको मिल रहा है साथ में। okay. So, जैसे आपको है IaaS, ना, हाँ, जैसे आपको लैपटॉप मिला अमेज़न से, वो तो ब्लैक था ना, पूरा yes, डॉस था। sir. Yes, वर यू yes. एबल टू यूज इट? यू आर नॉट एबल टू No, यूज इट। क्या करना no. पड़ा आपको? प्लेटफॉर्म बनाना पड़ा है आपको, Yes, विंडोज sir. इंस्टॉल करना, सब कुछ करने के बाद देन यू आर रेडी टू यूज इट, करेक्ट? Yes, sir.
तो वैसे और प्लेटफॉर्म एज सर्विस वैसा ही है कि हाँ हाँ operating system will be installed, its patches will be taken care of, or if you are having some SQL Server applications, so it will do that as well. प्लेटफॉर्म SQL एज अ Server, सर्विस में हाँ, ओके एंड सर लास्ट वाले में सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में does this include IaaS PaaS the yes, SaaS include सब both कुछ, yes, yes. okay प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में प्लेटफॉर्म मिला, जैसे मोबाइल डेवलप करने के लिए पूरा एनवायरनमेंट सेटअप है, एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, बट वो बंदा बैठ के बनाएगा ना, सॉफ्टवेयर डेवलप करेगा उसके ऊपर, राइट? डेवलप right करने के बाद फिर एंड यूजर को मिलेगा, बट सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में वो डेवलपमेंट भी हो चुका है, खाली एंड यूजर इज गोइंग टू यूज इट नाउ. गॉट इट? yes sir तो सबसे कॉस्टली फिर सर SaaS रहता होगा यस, यू आर राइट, बट इट इज प्रेफरेबल. अगर आप खुद की टीम लगाओगे, सब कुछ करोगे, तो उतना ही पड़ता है ना. हाँ उतना ही तो विंडोज ज्यादा भी पड़ सकता है या हाँ, जैसे आप है ना, कुछ बना रहे, पिज्जा बना रहे घर पे, या बाहर से ऑर्डर कर रहे, तो उतना ही पड़ेगा ना, आपका एफर्ट जा रहा है, तो गैस सब, आप मार्केट में जाके पेट्रोल खर्च करके सब सामान खरीद के लाओगे, सब करोगे, और यहाँ पर आपने पिज्जा ऑर्डर कर दिया, डायरेक्टली आ गया आपके घर में, तो दैट इज सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, राइट? सब बन के आ गया, अब खाना है आपको, तो उसमें कुछ ज्यादा डिफरेंस रहता है पैसे में कि सेम वैसे ही हुआ ना? आपको लगता है कि सस्ते में बन गया, लेकिन there is charges ना, and lot of things are there, और दिन ब दिन वो सस्ता होता जाएगा, बिकॉज उसका एक बार कंपटीशन बढ़ रहा है सर कंपटीशन, ऑल्सो एक बार उसका कॉस्ट निकल गया, तो दे विल गिव व्हाटएवर दे सेल, इट इज बेनिफिट ओनली फॉर देम. या तो ये क्लाउड सस्ता ही होते जाएगा, फ्यूचर में यू विल फाइंड इट विल बिकम चीपर एंड चीपर, इट विल बिकम मोर रोबस्ट, so people will use cloud only. Correct, यस मैडम? सर यस सर बिल्कुल पक्का पक्का, यस सर आप कह रहे हैं तो सही है और मैं कह रहा तो सही है. अच्छा है यार, मुझे बकरा बनाओ आप. ओके, नेक्स्ट थैंक यू नेक्स्ट क्वेश्चन गोस टू whom? किसका बारी था बाबा? मेरा होगा शायद आपका? ओके, व्हाट डू यू मीन बाय पोर्ट नंबर? सर पोर्ट नंबर कल बहुत अच्छे से यू एक्सप्लेन It is हाँ, an अच्छे से पता है, application बोलो. address. हाँ बोलो. It is an application address within a computer, which means that on a computer there might be hundreds of programs running in the front end as well as in the back end. So when the data is coming from the server, how it has to identify to which application, to which window the data has to be transmitted or has to go. So to identify that, the port numbers are created, which is the address of the application. राइट, वेरी करेक्ट. गॉड ब्लेस यू. Thank you. थ्योरी बहुत अच्छा है मेरा, प्रैक्टिकल में हालत हो जाती है. प्रैक्टिकल में उल्टा पुल्टा कर देते आप. हाँ ना, कभी कभी. अच्छा है, खुद की तारीफ खुद ही करी जा रहे हो. मैं बोलूँ तो ठीक, आप क्या, मेरा तो ये अच्छा है. ओह, अच्छा है, गुड. You should be proud of yourself. You should love Yes, yourself. Then you can yes, love sir. others, right? बोलते हैं ना वैसा. True, true. Right. So you're going on the right track. God bless you. Thank you, sir. All right. So पोर्ट नंबर समझा? रियान, आप बताओ पोर्ट नंबर, आप भी बोलो. it is an application address within a computer. और सर for example आपने बैंक का एग्जांपल दिए थे. for a deposit machine, मतलब हर एक बैंक में अगर अलग अलग नंबर पे है, so people will get confused कि कहाँ पे डिपॉजिट करना है. So like when the data is coming and from a router, and then we have to transmit the data to a specific location. मतलब बहुत सारे Specific server. specific
सर्वर्स, तो उसको कहाँ पे जाना है वो डायरेक्ट करने के लिए एग्जैक्टली हर एक का मतलब एक स्पेसिफिक लोकेशन रहना चाहिए। तो वो लोकेशन होता है हमारा पोर्ट नंबर। पोर्ट नंबर वो स्पेसिफिक लोकेशन डिफाइन करता है, तो वो डेटा वही पोर्ट नंबर पे जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसा आप डिपॉजिट काउंटर का आपने दिया था 80 नंबर है, तो हर एक बैंक में अगर 80 नंबर का ही अगर डिपॉजिट काउंटर रहा तो इजीली कोई भी जो डिपॉजिट सेक्शन के लिए क्वेरी आती है या फिर जो आता है वो 80 नंबर पे ही जाएगा। तो दैट इज द पोर्ट फॉर द बैंकिंग सिस्टम्स। आप बोलिए मिनल, यस सर। बोलिए, आप भी बोलो। मैंने तो बोला अभी पोर्ट नंबर के बारे में। नहीं, अभी इन्होंने जो बैंक का एग्जांपल दिया वो क्या है? Sir, basically in bank example, sir, it is like every bank has many services and they all give those services on a different counters. So in case if they decide that they will make it all a universal system, that for example, counter number one will have savings accounts help, counter number two will have credit card help. So it will become easier for the customers to locate and get their work done more efficiently. हाँ, So that is how the port number works. That anywhere the port number is the same for some the applications. same for the applications. Um, Application address is the same. See, this client in this server, ये तो बात सही है कि port number is the address given to an application, right? Yes, sir. So whichever network application you are or service you are using in your computer should have a particular port number, so that from the port number it will segregate the data, because you have only single interface. The data is going to enter through one single interface, it will get segregated everywhere, right? Yes. So port number से segregate हो जाएगा. But only thing, server side we have standard port numbers, well-known port numbers. Why? Because Because on the server side, it will not change. It will only change on the client side. server side हम fix रखते हैं because servers are like shopkeepers. Yes. के counter numbers fixed होने हैं. Server is like a bank, gives many services. So वैसे ही अपना internet पे servers है, Gmail का server है, वो it gives browsing service, it gives data services, it gives email services. So many services the Gmail is giving, the Google is giving, right? तो हर अलग अलग पोर्ट नंबर पे होगा ना. Yes, sir. तो उसका स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए, तो पीपल विल नॉट गेट कंफ्यूज. दे गो टू एनी सर्वर इन द वर्ल्ड, इफ दे वांट web service, HTTP service, it is port number 80, HTTPS 443. So these are known as well-known port numbers. Yes, sir. Yes, sir. Standard port numbers. So those port numbers are standardized. FTP, SMTP अपने जो Correct. इस तरह से. Okay, madam. Yes. Okay, then next is physical address. Yes, Rian, tell me what is the physical address? it is an address given by a manufacturer to Very good. individual network interface. Very good. For example, उसको MAC address भी बोलते हैं कंप्यूटर में, है ना? सर वो Yes. MAC address PC वाला MAC address है या वो Apple वाला MAC address है? मतलब PC वाला, वो वाला. MAC हाँ. MAC means media access control. The full form is media access control. Yeah. Can you tell me, Minal, something more about MAC address or physical address? Yes, sir. बोलिए ना. Yes, sir. I'm just writing the full form of media access control. हाँ, लिखिए जी. Because yesterday I also wanted to ask you that if this is Mac, then why all the Apple laptops are called Mac? MacBook, Mac something. So किसका? एप्पल का? Apple के सारे सर MacBook कहते हैं ना उनको. क्या Mac पता? क्यों कहते हैं Apple के डिवाइस? क्या पता, कोई माइकल ने बनाया होगा तो इसलिए मैक, पता नहीं. सर आप नो आइडिया. हाँ उनको मैकबुक कहते हैं, मैक कंप्यूटर, मैक ये वो सारा मैक ही कहते हैं एप्पल वालों को.
Basically, sir, the physical address is given by the manufacturer to the network interface. It is a unique address that no two address in the whole world is same in physical address. बट आजकल It's a फिजिकल एड्रेस चेंज hexadecimal कर system. सकते हैं, फिजिकल एड्रेस इन आजकल पॉसिबल है चेंज करना, Okay. हो रहा है क्योंकि ठीक है, How? दैट्स अ डिफरेंट थिंग। Okay. सो हाँ, कितने हेक्स डिजिट्स का होता है फिजिकल एड्रेसेस? हाउ Sir, मेनी? it is 12 hex digit, हाँ, which means it is for 48 bits. 48 बिट्स। Bits. Yes, sir. It is also a hexadecimal system. ठीक है, 1 hexadecimal digit is equal to how many bits? 4 bits, One. right? Yes, sir. 4 bits. Correct? Yes, sir. गुड। चलो, बहुत अच्छा हो गया रिवीजन। यू थिंक अच्छा हो गया रिवीजन? हेलो सर, मुझे ये आपसे एक क्वेश्चन था। सर, जब हमने स्टार्ट किया था ना, तो आपने बाइनरी और डेसिमल तो बताया था सर, बट सर मुझे ना एक बार फिर से आप एक बार हेक्साडेसिमल के क्या मतलब थोड़े से आप एक बार बताना ना प्लीज, इफ वी हैव टू गेट इनटू डेप्थ ऑफ इट, द हेक्साडेसिमल डिजिट्स के प्लीज। मुझे डेसिमल और बाइनरी का आपने बताया था, लाइक 1 इक्वल्स टू 1, 2 इक्वल्स टू 1 0, एंड देन हमने बहुत सारे कन्वर्जन्स भी किए थे स्टार्टिंग में, बट हेक्सा डिजिट्स और हेक्साडेसिमल का आई एम नॉट टू श्योर। मैंने ज्यादा कुछ शुरू में लिखा है उसके बारे में अपने पास। ठीक है, देखेंगे, थोड़ा रिव्यू करेंगे। एक बार सर प्लीज चेक करेंगे ना, अगर कहीं हमको स्टार्ट करना है ये टॉपिक, तो हेक्साडेसिमल जब स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो। सो थैंक्स फॉर कनेक्टिंग विद मी टुडे। हैव अ नाइस थैंक्स फॉर वीकेंड योर एंड टाइम कीप सर। रिवाइजिंग, बट यस सर। ओके, चलो, यस ओके, सर। बाय। थैंक यू।